Coming from a family of doctors, the dream was quite clear. But what made her journey unique was how she got there. She's graceful, she's grounded, she's a neat 2025 topper. Meet our next problem solver, a powerhouse of calm, consistency, and quiet confidence. All India rank 5 and All India topper female in NEET 2025, Avika Agarwal. Hi, Avika. Hello, ma'am. How are you? I'm great. How are you? I'm very well, thank you. I'm so happy that you're here with us today and I'm able to talk to you. A big congratulations on this such amazing achievement. Thank you so much, ma'am. So coming from a family of doctors, like we mentioned, both your parents are doctors. Was medicine an obvious choice, or did you sit down and relax and think for yourself that yes, this is what I want to do? For most of my life, they have inspired me because it's like उनके साथ-साथ मैंने देखा है how is it to be a doctor, because they live the experience, I share it. So somewhere or the another, I was inspired bit by bit. But once I reached 9th, 10th, it's like you have to decide अब आपको क्या करना है. तब जब मैंने deep thought दिया कि what do I want to actually do, तब मेरे को realize हुआ नहीं, this is the field for me and I want to go here. So it was a combination of what you saw in the family and your independent decision along with it. So did you see the result yourself or you asked your parents to see it for you? I saw it myself. मेरे को सर का फ़ोन आया कि अविका रिजल्ट आउट हो गया है एंड आई वाज वेटिंग लाइक सिंस द फाइनल की. वो सुबह 9 o'clock आ गई थी तो अराउंड 12:30 के रिजल्ट आया एंड आई वाज लाइक सर नहीं आया, मैं हर जगह अपडेटेड हूँ. ही वाज लाइक नहीं आ गया, आई एम शेयरिंग द लिंक. एंड लिंक से आई एक्सपेक्टेड कि क्रैश होने वाली है साइट, तो आई वाज लाइक ठीक है हो जाऊँगी रेडी. बट एज सून एज आई क्लिक वो खुल गया रिजल्ट, वो क्रैश नहीं करी. एंड सामने मैंने पढ़ा AIR 5 एंड लाइक मेरे बगल में मेरा भाई, मेरी मम्मी थी एंड हम सब ऐसे चिल्लाए, वी वर डांसिंग विद जॉय कि ये क्या हो गया, बिकॉज इतनी अच्छी रैंक कोई एक्सपेक्ट नहीं थी हमें. वी वर लाइक हाँ ठीक है बढ़िया रैंक आएगी, बट 5 आएगी ये तो बिल्कुल नहीं था. पापा ऑफिस से जस्ट आ रहे थे एंड मैंने रास्ते में उनको कॉल किया, पापा ऐसे ऐसे रैंक आई है. वो रास्ते में ही चिल्ला रहे हैं खुशी से, अरे इतनी अच्छी रैंक. फिर आई कॉल्ड माई टीचर्स, वो भी वहाँ से चेक कर रहे थे, वो इतने खुश हो गए. फिर हमें थोड़ी देर बाद पता चला 2 घंटे बाद कि मैं फीमेल टॉपर हूँ. उसकी खुशी फिर और डबल ही हो गई कि एक खुशी तो थी और खुशी हो गई. फिर हम इतने एक्साइटेड, हम उसी समय कोचिंग गए, सब नाच रहे हैं ढोल पे. इतनी गर्मी हो रही है, किसी को गर्मी फील नहीं हो रही है, सब खुशी के मारे बस नाच रहे थे वहाँ पे. मतलब ऐसा जॉय था कि उसके आगे सब कुछ ऐसा फीका सा पड़ रहा था. was truly amazing. तो ये जो जॉय थी आपने उसी मोमेंट में सेलिब्रेट की कि सेलिब्रेशन अभी तक चल रही है? वो चलती ही जा रही है बिकॉज वो एक अचीवमेंट हो गई है जो लाइफ लास्टिंग है. अब वो कोई छीन नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकती. तो हम उस दिन तो अनऑफिशियली सेलिब्रेशन कराए, अगले दिन हमने उसको ऑफिशियल मान के उतनी सेलिब्रेशन कर ली एंड सिंस देन वो बिट्स में चलती ही जा रही है. That's good. It's totally worth it also. Tell us, which was your favorite subject? Throughout these 2 years, physics was my favorite subject. And which was the least favorite? Biology. Why is that? Because my memorization part is like something I have like मेरे को नहीं रटना, but doctor बनना है तो I did go through that journey. Okay. Take us through a little bit about your 1.5 hour focus study block. How did that work in favor best for you? Actually, I figured out कि मेरा attention span बहुत लंबी देर तक नहीं चलता है. I have a very short attention span. तो उसको ध्यान में रखते हुए I made sure कि मैं 90 minutes के लिए focus study करूँगी. फिर I'll have a big break of 30 minutes because वो 5-10 minutes का break खिंच के 30 हो ही जाता था हमेशा. तो I was like I'll keep 30 minutes for myself. And in 90 minutes में I used to try कि मैं subject shuffle कर लूँ एक बार. बिकॉज मोनोटोनस करते रहो तो इट गेट्स टायरिंग एंड बोरिंग फॉर द ब्रेन. तो मैं कोशिश करती थी कि मैं 45 मिनट्स एक सब्जेक्ट को दे दूँ, एक का थ्योरी पढ़ लेती थी एंड द रेस्ट 45 मिनट्स आई यूज्ड टू प्रेफर कोई क्वेश्चंस कर लूँ या फिर समथिंग जिसमें मेरे को अब एक्टिवली अपना ब्रेन ना यूज़ करना पड़े. राइट. सो ये एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड स्ट्रैटेजी है कि आपने खुद अपने लिए डिवाइस की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? या लाइक आई ट्राइड डिफरेंट थिंग्स. लाइक इनिशियली क्या होता था, एक सब्जेक्ट पसंद आ रहा है वही पूरे दिन पढ़ते जा रहे हैं, बट धीरे धीरे आई रियलाइज़ कि मैं उससे और जल्दी अपने ब्रेन को टायर कर रही हूँ एंड मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है. तो धीरे धीरे आई ट्राइड शफलिंग 2 सब्जेक्ट्स. फिर मेरे समझ आया कि नहीं, द मोर आई शफल द मोर ईजियर इट गेट्स फॉर माई ब्रेन. तो धीरे धीरे आई केम टू दिस स्ट्रैटेजी. दैट्स वंडरफुल टू नो. ऑफ कोर्स आपने बहुत
solid preparation ki hai, which is why you achieved what you've achieved. But we've also gotten to know one more interesting thing about you, that you hold a degree in Kathak. Yeah, yes, I do. And you have earned awards. Yeah, I Now am. that definitely means it's a little more than just a hobby or just like an interest. So tell us, how did Kathak come into play? Actually, बचपन से I was not into dancing, but my mother said, try it, क्या जा रहा है? And I was like really small, and हर चीज़ के लिए मना, नहीं 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 मैंने नहीं करना. But then I went there, I learned and धीरे धीरे I so enjoyed it that इतने level तक कर लिया that I used to go to every competition जो हो रहा है. It's like, chalo, chalo, it's a competition, मजे आएंगे, I'll participate, I'll dance. I loved getting dressed up for that. Because Kathak में you have that whole attire and something ना, तो मेरे को बहुत ऐसे fancy लगता था कि I'll go there, I'll do that, I'll do this. And धीरे धीरे इतना time तक मैंने सीख लिया कि I eventually got a degree in it. That's a beautiful story about your Kathak journey. Do you plan to continue it now that, of course, Yeah, things are going to definitely. change for you? Yeah, definitely. But you will in try college. to also pursue that side by Yeah, side. definitely. Okay. Again, I'll request you to journey back in time a little bit. Let's say we are on the exam day. Okay. The day when you had to give your exam. What was your routine that day? Right from entering the hall to attempting the paper, did you have a strategy in your mind? Yeah, I did. Actually, I did not anticipate that we'd have to go through a very long checking process. I had to report to my center around, I think, 11:30 or 12. So I was there by that time, and 3 of my teachers also were there. They were there to, make sure that I'm comfortable, not very anxious. And I entered inside around 12:20, but I reached my exam hall at 1:20. Oh. Because there was this huge checking process. Okay. Every bits, कि आपने कान में कुछ नहीं पहना, you are not wearing anything. And उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लग जाता है because momentum थोड़ा break हुआ. हाँ, you are expecting कि आप 2 घंटे पहले हो एग्जाम से, but when you enter the hall, you are like only 20 minutes before you get the paper. Because हमें like 15 minutes पहले दे देते हैं वो कि आप रख लो अपनी टेबल पे, जब we say we'll open it. तो जब मैं रूम में गई तो मैं थोड़ी सी डर गई थी कि मतलब मेरे को लगा था I'll have a lot of time to calm myself down, but ऐसा हुआ नहीं. फिर जब मैं वहाँ चली गई ना तो मैं बस मन में भगवान को याद कर रही थी. मम्मा कहती है जब भी टेंशन हो भगवान को याद करो, सब बढ़िया होगा. तो मैं वहाँ बैठी हुई 20 मिनट्स बस भगवान को याद कर रही हूँ. फिर मेरे हाथ में ना वो पेपर आ गया सामने. मेरा दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है अब हो जाएगा फाइनल जो होना है, तो अब सोचना नहीं है. मैंने पेपर खोला. आई स्टार्टेड विद फिज़िक्स. मैं फिज़िक्स से ही स्टार्ट करती हूँ. एंड इतना तो मैं मेंटली रेडी थी, थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगी, बट काफ़ी स्लो था बिकॉज पेपर अगेन बहुत लेंदी और टफ था. तो 20 मिनट्स हुए, ओनली 5-6 क्वेश्चंस, इमीडिएटली फिज़िक्स छोड़ दी मैंने. वेंट टू केमिस्ट्री, वो आराम से हो गई. बायो की, वो आराम से हो गई. हाँ, बायो में 1-2 क्वेश्चन वो गूगली वाले थे जिनसे मैं एक्चुअली कंफर्ट हो गई क्योंकि मुझे आते थे एंड मेरे को लगा ओके आई हैव एन एज हियर. फिर मैं फिज़िक्स पे जंप की, जितना मुझसे सॉल्व हुआ किया. एंड लास्ट 10 मिनट्स में मेरे को अचानक से बहुत पैनिक हो गया. आई फेल्ट मैं बाहर जाऊँगी, सब कहेंगे 700, 710, 720 एंड एक मैं ही होंगी जो बोलूँगी मेरे को 700 भी एक्सपेक्ट नहीं हो रहे हैं. बट किसी तरीके से मैंने बोला अब जो है सो है, करो, बाहर निकलो. एंड जब मैं बाहर गई, मैंने बहुत ट्राई किया मैं एक स्माइल के साथ जाऊँ ताकि मेरे टीचर्स और पेरेंट्स ना डरे, बिकॉज आई सॉ पीपल क्राइंग अराउंड मी. रियली? या रियली. एंड उसको देख के मैं और डर गई कि क्या होने वाला है. बट जब मैं गई देयर फर्स्ट क्वेश्चन वाज डिड यू अटेम्प्ट द एंटायर पेपर. तो आई वाज लाइक ओके या I'm in a good space, I'm okay, I'll be fine. I did attempt the entire paper. And फिर धीरे धीरे I got to know about my friends and then I was like okay at least I'm not the only one here. तो बट हाँ, उसके बाद जो हार्ट बीट रेस की मेरी एग्जाम हॉल के निकलने के बाद इनफैक्ट ज़्यादा की, बिकॉज इट वाज लाइक अब हो गया, नाउ आई कांट चेंज एनीथिंग. तो आई थिंक हाँ, उसके बाद मैं ज़्यादा डर गई. So if there is one advice that you can give to the future aspirants about this, because clearly it's visible that there is a lot of anxiety that can stem from the surrounding. What if somebody ahead of you is feeling more confident, that can also play on you. Of course, you've mentioned your story as well. So what is that one thing that you'd tell? I think once you enter the exam hall, भूल जाओ दुनिया में कोई है या नहीं है. Just be on your table, सामने पेपर है, बस जैसा होगा हो जाएगा, जैसा तुम्हारे डेस्टिन्ड होगा उससे अच्छा ही होगा. ऐसा भगवान किसी के साथ गलत नहीं करता है, आई फील. एंड
उस समय दूसरों को नोटिस ना करना इज द बेस्ट ऑप्शन Yeah. बिकॉज वो फिर आपको अफेक्ट ही नहीं करेगा. Right. यू ओनली नो अबाउट योर सेल्फ, सो you're Right. gonna go a long way. So it's preparation, and don't look at anybody else. Just look at your paper. That's the advice that Avika Yeah. is giving. My last question to you, Avika, is how did Akash help shape your success story? I think Akash was not just there for me for the teaching. Like at my center, मेरे teachers at one point मेरे friends बन चुके थे, and Akash literally became my second home. मैं class 10 से Akash में enroll थी. तो when I actually started preparing for NEET in class 11th, I was like, ठीक है, this is my safe space. अभी घर जाके पढ़ना है, अभी यहाँ पढ़ लेंगे. एंड टीचर्स को तो मैं इतना इजीली अप्रोच कर लेती थी. पेपर में मार्क्स कम आए, सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये थोड़ी होता है, हम इतनी पढ़ाई करके आते हैं, ऐसे ही हो जाते हैं, इसलिए मिस्टेक्स हो जाते हैं. तो यूज्ड टू बी लाइक चिल मारो. जब करोगे फाइनल नीट के दिन कोई नहीं होती सिली मिस्टेक्स, जब तुम्हें खुद ही दिख रहा होता है कि दिस इज गोना डिसाइड व्हाट कॉलेज यू आर गेटिंग. एंड टू बी ऑनेस्ट वो कहीं ना कहीं सही थे. नहीं होता है उस दिन, यू आर एक्स्ट्रा केयरफुल योरसेल्फ ओनली. तो उसके अलावा भी आई थिंक एक वो होता है ना, क्यूरेटिव है सब कुछ. यू डोंट हैव टू पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट्स अलग से कि व्हाट स्टडी मटेरियल या व्हाट सिलेबस या कितना एक्स्ट्रा. वो सब ऑलरेडी डिज़ाइंड होता है, यू जस्ट हैव टू फॉलो इट. तो वो 90% मेहनत वो ऑलरेडी करके देते हैं. तो आई थिंक इट रियली हेल्प मी. So it put you 2-3 steps ahead. Yeah. And it saved your efforts, and that's Yeah, it. And it also definitely. gave you a lot of comfort. Definitely. It was lovely speaking with you, Avika. Thank you. Wish you all the very best Thank you. for Thank you. your future ahead. From dance floors to doctor dreams, Avika's story is a celebration of calm focus and creative balance. For all the aspirants out there who are watching this, please do remember Avika's words: stay calm, stay focused. That's half battle won.